Hello everybody, welcome to our channel Engineers Guru. So today I would be discussing a very important concept, that is shear center. So let's see what is a shear center. Shear center क्या होता है? So in this series, in this concept centric series, we would be centering ourselves on certain important concept, और आज का important concept है shear center. देखिए ये जो shear center है, it is defined for thin walled members. थिन वॉल्ड मेंबर्स तो समझते हैं जिनकी थिकनेस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू देयर डायमेंशंस. दीज काइंड ऑफ मेंबर्स आर नोन एज थिन वॉल्ड मेंबर्स. तो पहले तो हम देखेंगे कि थिन वॉल्ड मेंबर्स में कब ट्विस्टिंग हो सकता है और कब ट्विस्टिंग नहीं होगा. So that is no twisting condition in a thin walled member. So first we will see what are the no twisting condition in a thin walled members. इसी के बाद बेटा फिर आप जो है shear center का डेफिनेशन अच्छे से समझ पाओगे. पहली कंडीशन, कब हमारे थिन वॉल्ड मेंबर में ट्विस्टिंग नहीं होगी. When the member is singly symmetric, that is when we will have only one axis of symmetry and the load is contained in on the axis of symmetry or in the plane of symmetry, then the section will have no twist. So when the section is having a plane of symmetry, इसका मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा आपको. When the section is having a plane of symmetry, when the section is having a plane of symmetry and the loading is in that plane, and the loading is in that plane, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, and the loading is in that plane, then there will be no twist. And loading is in that plane, then there will be no twisting. देखो बोलना क्या चाह रहे हैं यहां से, what we want to say है, समझते हैं. मान लो ये सेक्शन है, एक टी सेक्शन है, मान लो ये मेरा टी सेक्शन हुआ. ये डबली सिमेट्रिक है कि सिंगली सिमेट्रिक है? देयर इज ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. देखो यहां पे केवल एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इट इज सिंगली सिमेट्रिक है, और इसका सीजी कहीं यहां पर होगा. एंड इफ द लोड इज कंटेन्ड इन दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो यहां पे लोडिंग, एक वर्टिकल लोड लग रहा है एंड दैट इज कंटेन्ड इन दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो इस लोड के कारण, इस लोड V के कारण, दिस लोड इज इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इस लोड V के कारण यहां पर कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी. देयर विल बी ओनली बेंडिंग इन दिस केस, सो देयर विल बी नो ट्विस्ट इन दिस केस. तो इस केस में कोई ट्विस्टिंग नहीं होने वाली है. नाउ लेट अस सी द सेकंड केस. सेकंड केस में मैं डबली सिमेट्रिक सेक्शन की बात करूंगा, दैट इज सब्जेक्टेड टू अ स्क्यू लोड. सो एक डबली सिमेट्रिक सेक्शन है which is subjected to the skew load and this skew loading is passing through the CG of the section. In that case also we will have no twisting. So when a doubly symmetric section, when a doubly, इसको भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा मैं आपको, when a doubly symmetric section is having a skew load, has skew loading, skew loading means it is an inclined loading, skew loading passing through the CG of the section, passing through the CG of the section will have no twist. CG of section, when a doubly symmetric section has skew loading passing through the CG of the section, it will have no twisting. It will have no twist. इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो एक डबली सिमेट्रिक सेक्शन ले लो. देखो ये रहा, एक आई सेक्शन ले लेता हूं. दिस आई सेक्शन इज व्हाट, डबली सिमेट्रिक. देखो यहां पे दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चेक करो, वी विल हैव टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री हियर. एक एक्सिस तो बेटा ये रहा एंड वन एक्सिस इज दिस वन. And if a skew load is acting here, एक skew load लग रहा है, देखो यहाँ पे we have a skew load acting here. देखो एक skew load लग रहा है,
दिस इज अ स्क्यू लोडिंग, देखो इंक्लाइन लोडिंग है, दिस इज नोन एज अ स्क्यू लोड. If the skew load is passing through the CG of the section, in that case we will have no twist here. इस केस में भी कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी. एक थिन वॉल्ड मेंबर और है मेरा, मान लीजिए एक बॉक्स सेक्शन है. वी हैव अ बॉक्स सेक्शन लाइक दिस. देखो बॉक्स सेक्शन में भी हमारा दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. इन दिस बॉक्स सेक्शन ऑल्सो वी विल हैव two axis of symmetry. In this box section also we have two axis of symmetry. And if the load passes through the CG of the section, ये skew load है, and it is passing through the CG of the section, in that case also we will have no twist. In this case also we will have no twist. इस केस में भी देखो कोई ट्विस्टिंग नहीं होती. थर्ड केस समझिए, थर्ड इंपॉर्टेंट केस, when the beam is subjected to only pure bending. When beam is subjected to pure bending, when beam is subjected to pure bending, it will have no twist. It will have no twist. इस केस में भी बेटा देखो कोई ट्विस्ट नहीं होगा. मान लो ये बीम सेक्शन है मेरा, this is my beam and it is subjected to only pure bending condition. कोई भी टाइप का सेक्शन हो, अनसिमेट्रिक सेक्शन हो, चाहे मेरा ये कौन सा सेक्शन है, दिस इज एन एंगल सेक्शन, दिस इज एन अनसिमेट्रिक सेक्शन, या कोई सी चैनल सेक्शन हो, या टी सेक्शन हो, या फिर आई सेक्शन हो, कोई भी टाइप का सेक्शन हो, इन दिस केस देयर विल बी नो ट्विस्ट. कोई भी सेक्शन हो बेटा, यहां पे कोई भी सेक्शन हो, यहां पर वी विल हैव नो ट्विस्ट इन दिस केस. वी विल हैव नो ट्विस्ट इन दिस केस. तो इन सारे सेक्शंस के केस में कोई ट्विस्ट नहीं होगा, बिकॉज द बीम इज सब्जेक्टेड टू ओनली प्योर बेंडिंग कंडीशन. बट ट्विस्टिंग कब हो सकती है? When we have an unsymmetric loading condition, that is when the load is not contained in the plane of symmetry. So when a member is singly symmetric or when the member is unsymmetric and the loading is not in the plane of symmetry, in these cases we will have twisting. वो cases भी दिखा देता हूँ. अब किन cases में हमारा twisting होने वाला है, वो cases देखिए किन cases में twisting होने वाला है. Let us see the fourth case. So if a beam, एक beam है that is having no, if a beam section possesses no symmetry, no plane of symmetry, or if it possesses a single plane of symmetry, or if it possesses a single plane of symmetry and the loading is not in the same plane, a single plane of symmetry and is subjected to a load, and is subjected to a load that is not contained in that plane, that is not contained in that plane of symmetry, will have twist. In that plane of symmetry will have twisting. डायग्राम के थ्रू समझाता हूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. मान लो एक बीम सेक्शन है जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है. मान लो ये एंगल सेक्शन है मेरा, दिस इज माय एंगल सेक्शन. देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इसमें अगर आप लोड अप्लाई करोगे, इफ यू विल अप्लाई अ लोड हियर, मान लो मैंने यहां पर एक लोडिंग अप्लाई की है, लोड इज पासिंग थ्रू दिस सीजी, बट देयर विल बी ट्विस्ट. ट्विस्टिंग विल ऑकर, ट्विस्टिंग विल ऑकर हियर. गॉट माय पॉइंट? ट्विस्टिंग विल ऑकर हियर. या मेरा सेक्शन सिंगली सिमेट्रिक है. देखो सेक्शन इज सिंगली सिमेट्रिक लाइक इन द केस ऑफ टी सेक्शन, बट द लोडिंग इज नॉट इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना. देखो ये टी सेक्शन है, ये मेरा टी सेक्शन है. हियर आई एम हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, हियर आई एम हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री,
एंड द लोडिंग इज नॉट इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो यहां पे जो लोड है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं है। मान लो ये लोडिंग लग रहा है मेरा, ये पी लोड लग रहा है, तो इस केस में भी देखो अब ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग विल ऑकर बिकॉज द लोडिंग इज नॉट इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री। या फिर इस केस में स्क्यू लोडिंग हो एंड इफ द लोड इज पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द सेक्शन, तब हो जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, ये मेरा सीजी है एंड देयर इज अ स्क्यू लोड दैट इज पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द सेक्शन। क्या बेटा इस केस में कोई ट्विस्टिंग होगा? होगा। स्क्यू लोड अगर डबली सिमेट्रिक सेक्शन में होता है तब तो ट्विस्टिंग नहीं होगा, बट स्क्यू लोड अगर सिंगली सिमेट्रिक सेक्शन में, इवन इफ इट इज एक्टिंग ऑन द सीजी, देन ऑल्सो वी विल हैव ट्विस्टिंग इन दिस केस, ट्विस्टिंग विल ऑकर। या मेरा सी चैनल सेक्शन है, देखो यहां पे मेरा एक चैनल सेक्शन है, सी सेक्शन है, दिस इज माई चैनल सेक्शन हियर। देखो ध्यान दो, दिस इज माई चैनल सेक्शन हियर, इसका सीजी कहीं यहां पर होगा, देख लो। और इस पर अगर मैं कोई इस टाइप का लोड लगाऊं तो क्या ट्विस्टिंग होगी? एकदम होगी, बिकॉज लोडिंग इज नॉट इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री वाला प्लेन तो ये है, loading is not in the plane of symmetry, so obviously here also we will have twisting, twisting will occur। तो इन्हीं अनसिमेट्रिक लोडिंग वाले केसेस को मुझे स्टडी करना है, ट्विस्टिंग विल ऑकर। These are all cases of unsymmetric loading in which twisting occurs। तो इन्हीं मेंबर्स के अराउंड अब हमारे shear सेंटर का कंसेप्ट घूमने वाला है। बात समझ में आई? देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट केस मैंने क्या बताया था आपको? फर्स्ट केस क्या बताया? व्हेन अ मेंबर इज सिंगली सिमेट्रिक एंड द लोड इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन दैट केस वी विल हैव नो ट्विस्ट। व्हेन वी हैव अ डबली सिमेट्रिक सेक्शन एंड द लोडिंग, इफ इट कैन बी अ स्क्यू लोड, वर्टिकल लोड और अ हॉरिजॉन्टल लोड, कोई भी टाइप का लोड अगर इस डबली सिमेट्रिक सेक्शन की सीजी के थ्रू पास करेगा, उस केस में भी वी विल हैव नो ट्विस्ट। सेक्शन किसी भी टाइप का हो, अगर बीम इज अंडर प्योर बेंडिंग कंडीशन, इस केस में भी कोई ट्विस्टिंग नहीं होता है। ट्विस्टिंग कब होगा? व्हेन वी हैव एन अनसिमेट्रिक सेक्शन एंड इफ इट इज लोडेड, देयर विल बी ट्विस्टिंग। अगर सिंगली सिमेट्रिक सेक्शन है, इस केस में भी ट्विस्टिंग होगा इफ द लोड इज नॉट लाइंग इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इफ वी हैव अ स्क्यू लोड in the case of members having only one axis of symmetry, then also twisting will occur. And lastly this case, got my point? So in all these cases we will have twisting। अब यहीं से ओरिजिनेट होगा डेफिनेशन हमारे shear सेंटर का। अब देखो, अब आप समझ गए कि किस किस मेंबर में ट्विस्टिंग हो सकता है। तो जिन मेंबर्स में ट्विस्टिंग हो सकता है उन्हीं के लिए एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट बताया गया है shear सेंटर का। What is shear center? Let me define shear center. In the case of unsymmetrical loading condition, or in the case of unsymmetric loading condition on a beam section, if a load does not pass through shear center, then there will be twist. But if the loading is passing through a point that is known as shear center, there will be no twist, only bending will occur। बात नहीं समझ में आई आपको? मैं समझाता हूं। मान लो एक हमारे पास चैनल सेक्शन है, वी हैव अ चैनल सेक्शन लाइक दिस, देखो, और इस पर एक shear फोर्स लग रहा था। हमारे पास देखो इस तरीके से एक चैनल सेक्शन है, वी हैव अ चैनल सेक्शन लाइक दिस, और यहां पर बेटा एक फोर्स लग रहा है। देखो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सीजी उसका कहीं यहां लाई करेगा। अगर लोड यहां लगा रहा हूं तब तो बेटा इस केस में ट्विस्टिंग हो रहा है, ये हमने देखा था, इस केस में ट्विस्टिंग हो रहा है। बट अगर मैं लोड किसी एक ऐसे पॉइंट पे लगाऊं दैट इज नोन एज shear सेंटर, तब ट्विस्टिंग नहीं होगी। वो shear सेंटर कहां पर है? वो shear सेंटर वाला पॉइंट कहां पर है, वो ही दिखाना है। वो shear सेंटर वाला पॉइंट कहां पर है? वो shear सेंटर वाला पॉइंट इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। That shear center point will be on its axis of symmetry। देखो कहीं यहां पर होगा। This is my shear center here। तो अगर मेरा लोड इस shear center पे लगे,
देखो अगर हमारा ये लोड, मान लो ये पी लोड इस शियर सेंटर पे लगे तो यहां पर कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी, ओनली बेंडिंग होगी। गॉट माय पॉइंट। और यहां पर इस लोड के कारण इसमें शियर फ्लो जो देखने को मिलेगा, शियर फ्लो तो देखिए अब आप सब लोग समझते होंगे, दिस इज द शियर फ्लो इन दिस केस, है ना। शियर विल ऑलवेज रेजिस्ट दिस फोर्स, क्लियर है। सो दिस इज द शियर फ्लो इन दिस केस। सो हमारे केस में क्या हो रहा है कि ये पॉइंट पी इस तरीके से लगा सच दैट इसने ट्विस्टिंग फोर्स को कैंसिल कर दिया। कैसे? देखो यहां पर ट्विस्टिंग इस हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स के कारण होता और इस हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स के कारण होता। These two horizontal forces would have caused twisting here. इस ट्विस्टिंग को किसने रोका है? इस ट्विस्टिंग को रोका है इस लोड ने, that is acting at the shear center. So ये shear center वाला देखो जो ट्विस्टिंग मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में और इनका ट्विस्टिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में, दे आर ऑपोजिंग ईच अदर, thereby cancelling this twisting moment. तो shear center कैसे डिफाइन किया गया है? Shear center is a point such that if an unsymmetrical load is passing through that point, तो उस केस में कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी, ओनली एंड ओनली बेंडिंग विल ऑकर। अब मैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आपको चैनल सेक्शन का शियर सेंटर का लोकेशन, दैट इज ये ई निकाल के दिखा दूंगा, देखते जाओ कैसे निकालते, बट पहले मैं इसके डेफिनेशन को लिख देता हूं। सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल लोडिंग, इन केस ऑफ unsymmetrical loading, in case of unsymmetrical loading, if the load does not pass through the shear center, ये थिन वॉल्ड मेंबर्स के केस में देख रहे हैं, if the load does not pass through the, if the load does not pass through the shear center, the section will twist. The section will twist. However, if the load passes through the shear center, तब कोई twisting नहीं होगी. However, if the load passes through the shear center, if the load passes through the, if the load passes through the shear center, section will have bending but no twisting. Section will have bending, will have bending and no twisting. Got my point? तो shear center को ऐसे डिफाइन कर लिया हमने, और ये रहा डायग्राम में shear center। तो अगर मेरा अनसिमेट्रिकल लोड इस shear center के थ्रू पास कर रहा है तो इसका मोमेंट एक्चुअली, इसका ट्विस्टिंग मोमेंट इस shear फोर्स के कारण जो ट्विस्टिंग मोमेंट बनता उसको कैंसिल कर दे रहा है, thereby we will have no twisting in this case. इसी बेसिस पे मैं shear center का लोकेशन भी निकाल के दिखा दूंगा। Now let us see how to locate the shear center here. बात समझ में आई आपको? तो देख लेते हैं बेटा shear center का लोकेशन कैसे निकालते। बहुत ही सिंपल है shear center का लोकेशन निकालना। इस चैनल सेक्शन के लिए ही मैं जो है shear center का लोकेशन निकालने जा रहा हूं। बोर्ड पे ध्यान देंगे कैसे मैं shear center का लोकेशन निकालूंगा। लेट मी कंसिडर अ चैनल सेक्शन हियर। देखो यहां पर हमने एक चैनल सेक्शन लिया। अब इसका डेरिवेशन देख लो आप, shear center को निकालते कैसे, बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसे टफ चीज नहीं है। ये मेरा चैनल सेक्शन है, मुझे इसके लिए shear center को निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? तो यहां पर देखो shear center किसके थ्रू पास कर रहा है? इट इज पासिंग थ्रू दिस, द लोड इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, द लोड इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसी को shear center बोल रहे हैं। मान लो shear center, इस लोड के कारण देखो यहां पर shear फ्लो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस लोड के कारण एक shear फ्लो बनेगा यहां पे कुछ इस टाइप का। वी विल हैव अ shear फ्लो लाइक दिस हियर।
एक shear flow बनेगा यहाँ पे इस टाइप का, मानते हैं आप? एक shear flow देखो ऐसे बनेगा और इस लोड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेक्शन इज E. This is the location of my shear center here. This is the location of my shear center here. Got my point? मान लो ये effective depth is h here, center to center से लिया है, ये h मान लो, and this is the width, end to end लिया है, this is the width of the section. मुझे इस shear center को locate करना है. I need to locate this shear center. कैसे locate करूँगा? shear center को कैसे locate करूँगा? मैं इस पॉइंट O के अबाउट मोमेंट लेता हूं. मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट O विल बी 0. सो फॉर नो ट्विस्टिंग, ये पॉइंट O यहां पे डिफाइन कर देते हैं. लेट मी डिफाइन दिस पॉइंट O. सो फॉर नो ट्विस्टिंग मैं ऐसे बोल सकता हूं, फॉर नो ट्विस्टिंग टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट O शुड बी 0. कोई भी पॉइंट ले सकते थे, मैंने पॉइंट O ले लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए. अब पॉइंट O के अबाउट किस किस फोर्स का ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा देख लेते हैं. तो सिग्मा एमओ टोटल मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट O. P का मोमेंट क्या होगा? P का मोमेंट विल बी व्हाट? P का मोमेंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, दैट इज PE. और देखो यहां पे एक कपल बन रहा है क्या? देखो एक तो ये H फोर्स, H shear फोर्स, इतने सेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज H, और यहां पर इतने पोर्शन में ये H. ये दोनों फोर्स मिलके एक एंटी कपल बना रहे हैं क्लॉकवाइज सेंस में, देखो. और ये कपल की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी H इंटू H. सो E विल बी इक्वल टू क्या? E विल बी इक्वल टू HH बाई P. यही होगा. तो किसी तरीके से अगर मैं इस कैपिटल H को निकाल लूंगा तो मुझे लोकेशन ऑफ shear सेंटर मिल जाएगा. H is nothing but the horizontal shear force in these two flanges of this C channel section. वेब वाला नहीं लिया क्योंकि ये shear force के कारण तो मोमेंट 0 हो जाएगा ना मैंने, बिकॉज टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट O लिया हुआ है. अब मैं इस H फोर्स को कैसे निकालूंगा? ये भी बहुत सिंपल है. H फोर्स को निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है. लेट मी कैलकुलेट द H फोर्स फॉर यू. पर आपको ये E समझ में आ गया कैसे आएगा? अब देखो मैं H फोर्स निकाल के दिखा देता हूं. लेट मी लोकेट दिस और लेट मी कैलकुलेट दिस H फोर्स. बहुत ही सिंपल है. देखो कैसे निकालूंगा मैं? shear स्ट्रेस से निकालूंगा. मान लो थिकनेस ऑफ दिस सेक्शन इज T. इस सेक्शन का थिकनेस मान लो दिस इज T. यहां दिखा देता हूं. द थिकनेस ऑफ द सेक्शन इज T. थिकनेस ऑफ द सेक्शन इज T. क्लियर है? तो मान लो थिकनेस इसका T है. ये मेरा C चैनल सेक्शन था. दिस इज माई C चैनल सेक्शन. अब मुझे H निकालना है. कैसे निकालूंगा H? जरा ध्यान देना. कैसे हम H निकालेंगे? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सभी. कैसे H निकाल सकते? देखो ये T है मेरा. दिस इज द थिकनेस ऑफ द सेक्शन. मैं क्या है ना, पहले एक dx, x पे एक dx एलिमेंट ले लेता हूं. देखो x पे dx एलिमेंट लूंगा. ये एक मेरा dx एलिमेंट है और मुझे क्या करना है? इस dx एलिमेंट के लिए टाउ निकाल लेना है. तो h क्या होगा? h विल बी नथिंग बट, ये मान लो b है हमारा, h विल बी नथिंग बट इक्वल टू, और ये p फोर्स तो कहीं यहां लग रहा था ना, इसके कारण ही ये shear फोर्स बना है. ये shear फोर्स इस p फोर्स के कारण ही बना है ना. यही तो है वो shear फोर्स जो कि मुझे एनालाइज करना है. दिस इज उल्टा बना दिया ये. दिस इज द shear फोर्स हियर. ओके, अभी सही है. shear flow will always oppose this. This is the shear flow here. Clear है? Got my point? This is the shear flow here. तो मुझे इस shear flow के कारण उस shear force को निकालना है ना. मुझे ये shear force ही तो निकालना है. ये H है और ये भी H है. इसी H को निकालना है. तो कैपिटल H विल बी इक्वल टू हाउ मच? कैपिटल, और ये डिस्टेंस तो मुझे पता है, दिस इज इक्वल टू H स्मॉल h. देखो ध्यान दो बोर्ड पे. कैपिटल H को कैसे लिखूंगा? दिस इज टाउ T dx का इंटीग्रल 0 टू b. टाउ इज द shear stress at this section. तो shear stress into small area T dx, ये स्मॉल एलिमेंट लिया T dx, उसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से b में, तो मुझे shear force मिल जाएगा, दैट इज H.
तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे टाउ निकालना है क्या, और टाउ निकालने का फॉर्मूला पता है ना आपको, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वी ए वाई बार बाई आई इंटू बी, इसी से निकालूंगा ना टाउ, एकदम आराम से निकाल लूंगा। एरिया, कौन से एरिया का मोमेंट लोगे, v तो इज इक्वल टू p इन दिस केस, v इज इक्वल टू p इन दिस केस, ए वाई बार क्या होगा, कौन से एरिया का मोमेंट लोगे, जो कि जिस सेक्शन पे आप शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो उसके राइट हैंड की तरफ जो एरिया आ रहा है इसी का मोमेंट ले लेना, इजी हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले का ले लेना है तो राइट वाले का, मैंने राइट वाले का ले लिया क्योंकि वो इजी हो गया। तो इस एरिया का मोमेंट लेना है, कौन से एरिया का बेटा, इस वाले एरिया का मोमेंट लूंगा मैं। आई नीड टू टेक द मोमेंट ऑफ दिस एरिया, तो इस एरिया का मोमेंट कितना होगा बता पाओगे, इस एरिया का मोमेंट कितना होगा, what will be the moment of this area यार, इस एरिया का मोमेंट कितना होगा बता पाओगे, एरिया कितना है, एरिया इज t इंटू एक्स, और इसका y बार कितना है, y बार इज इक्वल टू h बाई 2 दैट इज कांस्टेंट अपॉन I इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन दैट इज इक्वल टू t, विड्थ इज परपेंडिकुलर टू द शियर फ्लो, उसी को लेते हैं हम लोग विड्थ। ये फॉर्मूला तो आपको लगाना आना चाहिए, तो इसी के हेल्प से मैंने टाउ निकाल लिया। एक बार टाउ मिल गया तो आप आराम से अब h की वैल्यू निकाल लोगे। तो भाई टाउ कितना आ गया, टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ जरा, p टी टी कैंसिल कर लेना, p इंटू एच अपॉन 2i इंटू एक्स, यही आ रहा है, p इंटू एच अपॉन 2i इंटू एक्स। अब इसको उठा के 1 में सब्सटीट्यूट या h निकाल लो, तो देयरफॉर h कितना आ गया बताओ जरा, टेल मी फास्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h यू आर गेटिंग, देयरफॉर h इज इंटीग्रल ऑफ phx अपॉन 2i इंटू टी dx, और इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से b में, तो ये तो सारा कांस्टेंट एक तरफ ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरा pH इंटू टी अपॉन 2i इंटू बी स्क्वायर बाई 2, क्या इंटू बी स्क्वायर बाई 2, तो 2 से बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो क्या आ जाएगा, pH t बी स्क्वायर बाई 4i, यही आ रहा, चेक कर लो, pH t बी स्क्वायर अपॉन 4i, इट इज नथिंग बट दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब इसको उठा के इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते तो E की वैल्यू आ जाती, दैट इज शियर सेंटर की लोकेशन आ जाती। देयरफॉर नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग जब भी आप ये कॉन्सेप्ट सीरीज देखो एक कॉपी लेके बैठा करो, तभी इस कॉन्सेप्ट सीरीज में मजा आएगा आपको, मेरे साथ साथ करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो गया, E इज नथिंग बट इक्वल टू एच एच अपॉन में P, तो H क्या है हमारा, डेट इज PH T बी स्क्वायर अपॉन 4i इंटू P इंटू एच, यही है। इसको थोड़ा सही कर लेते तो आंसर P कैंसिल कर लो, तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर T अपॉन 4i, दिस इज द लोकेशन ऑफ द शियर सेंटर, यही हमारे शियर सेंटर की लोकेशन है। देखो एक इंटरेस्टिंग बात देखो, शियर सेंटर की लोकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स, ये फोर्स का से इंडिपेंडेंट होती है, शियर सेंटर लोकेशन विल नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्स, वो फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द सेक्शन। अब बाकी के अलग अलग सेक्शन की शियर सेंटर की लोकेशन समझा देता हूं, बट पहले आप इसको लिख लो, यू कैन मेक अ नोट इफ यू विश टू। तो इस तरीके से हमने पहले शियर सेंटर को डिफाइन कर दिया कि शियर सेंटर होता क्या है। तो शियर सेंटर एक पॉइंट है जिसके थ्रू अगर हमारा अनसिमेट्रिक लोडिंग पास करेगा तो सेक्शन में कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा, केवल बेंडिंग होगा, और उसको मोमेंट वाले इक्वेशन से मैंने इस तरीके से निकाल दिया। इस तरीके से हम शियर सेंटर को किसी भी सेक्शन के लिए निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ अ शियर सेंटर इज डिफाइंड। अब देखो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं शियर सेंटर के बारे में जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन केस ऑफ सिमेट्रिक सेक्शंस, इन केस ऑफ सिमेट्रिक सेक्शंस जो डबली सिमेट्रिक हो, लाइक इन द केस ऑफ दिस आई सेक्शन, हमारा शियर सेंटर कहां होगा, शियर सेंटर विल बी एट द सीजी। इस केस में मेरा जो शियर सेंटर है
that will coincide with the CG of the section, यही मेरा shear center है। या अगर मेरा H section हो इस तरीके से, if you have an H section like this, इस केस में भी अगर मैं आपसे पूछूं where is my shear center, तो इस केस का भी बेटा shear center कहां पे? सो डबली सिमेट्रिक सेक्शन के लिए जो मेरा shear center होता है, डबली सिमेट्रिक सेक्शन का जो shear center होता है, that coincides with the डबली सिमेट्रिक सेक्शन का भी जो shear center होता है, that coincides with the CG of the section। बात समझ में आ रही है? बाकी सिंगली सिमेट्रिक सेक्शंस के लिए तो आपको मैंने shear center को निकालना सिखा दिया। तो अगर लोड इस CG के थ्रू पास कर रहा है तो यहां पर कोई ट्विस्टिंग होने वाली नहीं है। तो हम बोल सकते हैं दिस CG point is the what? This CG point is nothing but the shear center in this case। Got my point? तो इसी बात को लिख लो। In the case of section having two axes of symmetry, in the case of sections having two axes of symmetry, the shear center will lie at the shear center will lie at the CG of the section, will lie at the CG of the section। क्लियर है मेरी बात? सिंपल था। इफ द सेक्शन इज सिंगली सिमेट्रिक तो उस केस में हमने आपको डिराइव करके दिखाई दिया। सो इफ द सेक्शन इज हैविंग, if the section is having one axis of symmetry, उस केस में तो shear center will fall outside of the member and the shear center will lie on the axis of symmetry। देखो इस केस में एक axis of symmetry था ना, और shear center इसी axis of symmetry पे होगा, that is confirmed। सो अगर एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तब मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि shear center will lie on that axis of symmetry। तो if the section is having one axis of symmetry, then the shear center will lie on the axis of symmetry, then the shear center will lie at the axis of symmetry। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ में आ रहा है कि shear center जो है फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो केवल सेक्शन के डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो shear center is the function of shear center is the function of shape of cross section, and it is independent of loading, and it is वो लोडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता कभी भी, and it is independent of loading, it is not dependent upon the loading condition। एक लास्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर किसी एक सेक्शन को मैं दो रेक्टेंगुलर सेक्शन से बनाऊं, मान लो एक टी सेक्शन था मेरा, एक टी सेक्शन को कैसे बनाया है मैंने? दो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से बनाया। तो यहां का मैं shear center तुरंत बता सकता हूं। shear center कहां पर होगा? It is at the point of intersection of the axis of symmetry of these two rectangular sections। तो इन दो रेक्टेंगुलर सेक्शंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इनके सिमेट्री का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द shear center। मान लो अगर कोई सेक्शन ऐसा है, देख लो, अगर मैंने मान लो एक सेक्शन ऐसे बनाया, देख लो एक सेक्शन ऐसे बना रहा हूं by taking what? By taking two rectangular sections again। देखो दो रेक्टेंगुलर सेक्शन की हेल्प से बनाया गया है वापस से। दिस इज अ सेक्शन विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ टू रेक्टेंगुलर सेक्शन, दो रेक्टेंगुलर सेक्शन है यहाँ पे। तो इस केस में हमारा वापस से shear center कहाँ लाई करेगा? The shear center will lie at the point of intersection of the symmetry of these two रेक्टेंगुलर सेक्शंस। तो याद रखिएगा, अगर कोई सेक्शन दो रेक्टेंगुलर सेक्शंस के थ्रू बना है
तो वहां पर शेयर सेंटर को आप तुरंत लोकेट कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वहां का शेयर सेंटर कहां पर होगा? शेयर सेंटर विल pass or will be the point of intersection of the axis of symmetry of the two rectangular sections. तो इसी को भी मैं लिखवा देता हूं. So if the thin member section, if the thin section is composed of two rectangles, shear center will lie at the बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट था ये, will lie at the intersection of center lines of two rectangles, center lines of two. तो इन रेक्टेंगल्स के सेंटर लाइंस के इंटरसेक्शन पर हमारा जो है shear center लाई करेगा. Got my point? The shear center will lie at the intersection of the center line of these rectangles. अब एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन करेंगे shear center पे और फिर इस पूरे कंसेप्ट को हम उससे फ्रीज कर लेंगे. तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख लेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट द शेयर सेंटर. तो शेयर सेंटर को पहले डिराइव करके दिखा दिया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए. याद रखिएगा शेयर सेंटर लोड पे नहीं डिपेंड करता है, इट्स अ फंक्शन ऑफ शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ओनली. अगर डबली सिमेट्रिक सेक्शन है तो शेयर सेंटर विल लाई एट द सीजी. और अगर एक मैंने सेक्शन बनाया विद द हेल्प ऑफ टू रेक्टेंगल्स, इन दैट केस द शेयर सेंटर विल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर लाइंस ऑफ द टू रेक्टेंगल्स. अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पूरे कंसेप्ट को फ्रीज करने के लिए. लेट अस सी द क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का मैं शेयर सेंटर निकालता हूं तो पूरे कंसेप्ट को मैं इस सेक्शन के शेयर सेंटर के थ्रू समझता हूं. तो फाइंड द शेयर सेंटर ऑफ द सेक्शन. तो एक आप देख सकते हैं एक सर्कुलर सेक्टर दिया हुआ है और मुझे इस सेक्टर का शेयर सेंटर निकालना है. मान लो शेयर सेंटर इज समवॉट हियर, एक P फोर्स या एक V फोर्स लग रहा है जिसके कारण मुझे एक शेयर सेंटर निकालना है. मान लो ये P फोर्स लग रहा है जिसके कारण मुझे शेयर सेंटर का लोकेशन फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द सेक्शन निकालना है. दिस इज माई E. गॉट माई पॉइंट? इसके कारण बेटा जो शेयर फ्लो आएगा, इस फोर्स के कारण जो शेयर फ्लो आएगा वो तो कुछ ऐसा ही होगा ना. दिस वुड बी द शेयर फ्लो. यार देखो, इसके कारण जो मुझे शेयर फ्लो मिलेगा दैट वुड बी समवॉट लाइक दिस. देखो, दिस वुड बी द शेयर फ्लो. ये क्या हो गया? मेरा शेयर फ्लो हो गया. अब मुझे शेयर सेंटर निकालना है, दैट इज E का लोकेशन निकालना है, दैट इज E निकालना है. दिस इज माई शेयर सेंटर. कैसे मैं शेयर सेंटर निकालता हूं? यहां पर देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी. लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द शेयर सेंटर इन दिस केस. तो इस केस का मैं आपको शेयर सेंटर निकाल के दिखाता हूं. सो लेट मी कैलकुलेट द शेयर सेंटर इन दिस केस. बहुत ही सिंपल होगा कंसेप्ट, बोर्ड पे आप ध्यान दे दो बस एक बार ठीक से. ये बीटा दे रखा है हमें, इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे मेरा शेयर सेंटर लाई करेगा, ये तो समझ में आता ही है. देखो, शेयर सेंटर के लिए मैं इस शेयर फ्लो का फोर्स मोमेंट निकालूंगा अबाउट दिस सेंटर. So total moment about this center will be equal to 0. So total moment about the center. ये solution देख रहे हैं? We are now seeing the solution of the question. Solution देखो फिर. So total moment about the center is equal to 0. This implies that P into E into R या P या तो लोकेशन यहीं से ले लो पूरा का पूरा. आप एक काम करो, E वाला जो पॉइंट है you take it from the center only, और बढ़िया हो जाएगा. take the eccentricity और take this location from the center only, तो और अच्छे से आ जाएगा. let me take this point from the center only. E को जो है ना मैं सेंटर से ही ले लेता हूं तो और बढ़िया हो जाएगा. बोर्ड पे ध्यान दो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. जो मैं E ले रहा हूं that is from this center point only. यही मेरा E है. मान लो इसी E को निकाल लूंगा तो मुझे शेयर सेंटर का लोकेशन पता लग जाएगा. सो टोटल मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट O इक्वल टू 0. तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? P इंटू E
should be equal to m and this implies E is equal to m by p. और यहां पे m क्या है? m is what? m is the moment due to shear about the center. m is the moment due to shear about the center. यही मुझे निकालना है. m is the moment due to shear about the center. About where? About the center. निकाल लेते हैं इसको, खत्म करते हैं. About the center. कैसे निकालूंगा मोमेंट अबाउट द सेंटर? बहुत सिंपल है. उसके लिए बेटा अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? देखो ये मेरा सेक्टर था ना, दिस वॉज द सेक्टर हियर, दिस वॉज द सेक्टर हियर. क्लियर है मेरी बात? मुझे मोमेंट निकालना है अबाउट द सेंटर ड्यू टू द शेयर. कैसे निकालूंगा मैं मोमेंट अबाउट दिस सेंटर? यही देखना है हमको. अबाउट दिस सेंटर मैं मोमेंट कैसे निकालूंगा? तो ना मैं क्या करूंगा, एक थीटा पे एक स्मॉल एलिमेंट डी थीटा मान लूंगा. एक तो ये है ही मेरा बीटा, दिस एंगल इज बीटा. तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक एन एलिमेंट, आई विल टेक एन एलिमेंट एट एन एंगल थीटा. एलिमेंट कैसे लेते हैं? सर्कुलर सेक्शंस के केस में एलिमेंट ऐसे लिया जाता है, दिस इज डी थीटा. एक स्मॉल एंगल ले लिया मैंने डी थीटा. गॉट माय पॉइंट? ये पूरा एंगल तो बीटा है, ये तो मुझे पता है कि पूरा एंगल कितना है. दिस एंगल इज बीटा. ये एंगल बीटा है और ये एंगल भी बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया एट एन एंगल थीटा, दैट इज डी थीटा. आर इज द रेडियस, आपको पता ही, फ्रॉम द सेंटर मैंने ले रखा है. टी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. स्मॉल मोमेंट अगर निकालना चाहूं मैं, स्मॉल मोमेंट कैसे निकालूंगा? पहले स्मॉल शियर स्ट्रेस निकाल लो. शियर स्ट्रेस एट दिस सेक्शन टाउ है, तो स्मॉल शियर फोर्स क्या होगा, आर डी थीटा इंटू टी. ये मेरा स्मॉल शियर फोर्स हो गया क्या, इंटू क्या करूंगा, इंटू व्हाट, इंटू आर. इस शियर फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर ओनली. गॉट माई पॉइंट? तो उस तरीके से आप क्या करोगे, उस तरीके से आप आराम से इसका जो है, उस तरीके से आप आराम से इसका जो है स्मॉल मोमेंट निकाल लोगे. इसको आप इंटीग्रेट कर देना माइनस बीटा से प्लस बीटा. देखो ये बीटा क्लॉकवाइज है, दिस बीटा इज क्लॉकवाइज. ये बीटा क्लॉकवाइज है तो ये प्लस बीटा हो गया. क्लॉकवाइज बीटा इज प्लस बीटा. और ये एंटी क्लॉकवाइज बीटा है क्या? इसका देखो एंगल का ओरिएंटेशन अलग है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए मैंने इसको माइनस बीटा लिया है. ये तो समझते हैं ना थोड़ा बहुत आप लोग. ये एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए माइनस बीटा लिया गया. तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करूंगा, माइनस बीटा से प्लस बीटा. एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज सेंस इज पॉजिटिव. गॉट माई पॉइंट? तो मैंने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया, माइनस बीटा से बीटा. तो दिस विल गिव मी मोमेंट ड्यू टू द शियर. इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मोमेंट ड्यू टू द शियर. तो किसी तरीके से अब मुझे बस क्या निकालना है, आई नीड टू कंप्यूट दिस टाउ. अब टाउ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाउ कैसे निकालोगे? टाउ निकालना बहुत ही सिंपल है. टाउ निकालने के लिए आप वही फॉर्मूला यूज करोगे. क्या यूज, अब बस इसी फॉर्मूले में मुझे टाउ निकाल डालना है और मुझे एम मिल जाएगा. गॉट माई पॉइंट? तो फटाफट अब मेरी कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेता हूं. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होने वाली है. तो टाउ को क्या लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई इंटू टी. V is equal to P in this case. V is equal to P in this case. Got my point? तो भाई जल्दी से टाउ लिखो और फिर बढ़ते हैं आगे. तो टाउ कितना होगा, टाउ इज नथिंग बट इक्वल टू पी ए वाई बार बाई आई इंटू टी. इन दिस केस टी इज द थिकनेस, टी इज द थिकनेस. अब बेटा मेरे को यहाँ पे ए वाई बार निकालना है और टी निकालना है. कैसे निकाल रहा हूं देखो, किसी भी सेक्शन का मुझे टाउ निकालने के लिए आई नीड टू फाइंड आउट द ए वाई बार as well as I need to find out the moment of inertia. इसके लिए बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, कोई खास बात नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी. कैसे मैं ए वाई बार निकालूंगा, ध्यान दो. ए वाई बार कौन से एरिया का, पहले तो ये देखो, एरिया बियॉन्ड दिस सेक्शन. तो मैंने ना थीटा पे एक सेक्शन लिया था ना, I took a section at this theta.
I took a section at this theta. I took a section at this theta. I took a section at this theta. थीटा पे बेटा मैंने एक सेक्शन लिया था. I took a section at this theta. Got my point? अब मैं ना एक अल्फा पे मुझे इसी एरिया का क्या करना है, मुझे इसी एरिया का ए वाई बार निकालना है. उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए वाई बार मुझे पता है, ए वाई बार को मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रल वाई डी ए. दिस इज नथिंग बट माई ए वाई बार. बस यहाँ पे डी ए को अच्छे से बिठाना है और वाई को अच्छे से बिठाना है. कैसे बिठा रहा हूं यही देखो. अब मैं अल्फा पे एक स्मॉल एलिमेंट डी अल्फा लेने वाला हूं. लेट मी कंसिडर अ डी अल्फा. थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बट कोई खास बात नहीं है. ये मेरा एंगल डी अल्फा है. दिस इज माई डी अल्फा और ये मेरा एंगल अल्फा है. ये मेरा एंगल अल्फा है. अल्फा विल वेरी फ्रॉम थीटा टू बीटा. ये एंगल यहां से यहां तक वाला एंगल क्या है, दिस इज माई बीटा. तो अल्फा जो है थीटा से बीटा तक वेरी करेगा, क्योंकि मुझे इतने एरिया का, ध्यान दो, मुझे क्या करना है, मुझे इतने एरिया का ए वाई बार निकालना है ना. मुझे ए वाई बार बियॉन्ड द सेक्शन वाले एरिया का निकालना होता है. तो मैं इतने एरिया का ए वाई बार निकालने वाला हूं. तो उसके लिए ही बस मैं मुशक्कत कर रहा हूं. तो डी ए को क्या लिख दोगे, इस बार मैंने अल्फा डी अल्फा में बात करी है. तो ए वाई बार क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ. इसका y क्या होगा, यहां से यहां तक का भाई ये डिस्टेंस, y क्या होगा इसका, डेट इज r साइन अल्फा, r कॉस अल्फा, r साइन अल्फा. तो ये कितना होगा, दिस विल बी r साइन अल्फा. तो क्या लिख दोगे बेटा जल्दी से बताओ, y क्या आ जाएगा, r साइन अल्फा. और dA कितना होगा, dA विल बी इक्वल टू r d अल्फा इंटू टी. यही होगा, चेक कर लो. और इंटीग्रेट कहां से कहां करूंगा, अल्फा कहां से कहां तक वेरी करेगा, थीटा से बीटा तक. अल्फा वेरी करेगा थीटा से बीटा तक. तो मुझे ए वाई बार मिल जाएगा. जल्दी से इसको इंटीग्रेट करो, मुझे आंसर बताओ. तो आर स्क्वायर कॉमन खींच लो, आर स्क्वायर टी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा थीटा से बीटा तक. तो भाई ये कितना आ गया बताओ जरा, ए वाई बार मेरा क्या आया, ए वाई बार इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू टी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा. यही आ रहा है, चेक कर लो, कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा, यही आ रहा है. दिस इज माई ए वाई बार. तो ए वाई बार की वैल्यू मिल गई. अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो. तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी तरीके से निकाल लो. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आई. आई को कैलकुलेट कर लेते हैं. आई को कैसे कैलकुलेट करूंगा, दैट इज इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी ए. ये पूरे सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वाई मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज आर साइन फाई. तो उसको कैसे लिखूंगा, ऐसे तो लिखूंगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. डीए क्या होगा बेटा मेरा, डीए विल बी दिस वन ओनली, दैट इज आर डी अल्फा इंटू टी, आर डी अल्फा इंटू टी. ऐसे लिखूंगा देखो. और देखो अब इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, मुझे पूरे सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो अल्फा विल वेरी फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस बीटा. ये तो समझ में आ रहा है ना, अल्फा विल वेरी फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस बीटा, एज सिंपल एज दैट. सो आई निकाल लो बेटा, आई यहां से निकाल लो. लेट अस कैलकुलेट आई. तो देखो ये क्या हो गया, आर क्यूब इंटू टी हो गया क्या, और इसको 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा. तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल माइनस बीटा टू प्लस बीटा. यही आ रहा देख लो, इंटू डी अल्फा. यही होगा. इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यही तो बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आर क्यूब टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या है बेटा, ये बीटा आएगा अंदर, सॉरी अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 अल्फा बाई 2 माइनस बीटा से प्लस बीटा. यही है, चेक कर लो. लिमिट्स पुट कर दो, आंसर क्या आएगा देखो, बीटा माइनस बीटा पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 बीटा. सो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या आ गया, आई इक्वल टू क्या आ गया, आर क्यूब इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 बीटा माइनस ऑफ, देखो साइन 2 बीटा माइनस ऑफ माइनस साइन 2 बीटा, दैट इज 2 साइन 2 बीटा.
दैट इज 2 sin 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 अगेन। गॉट माई पॉइंट? तो इस 2 को एडजस्ट कर दो हर जगह और आपको फाइनल आंसर मिलेगा। फाइनल आंसर क्या मिलेगा? देखो ये 2 से 2 कट कर देना, इस 2 को अंदर ले जाओ तो i की वैल्यू आ जाएगी। i क्या आ जाएगा? r क्यूब t इंटू बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, क्या माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, यही आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ i। तो a y बार भी निकाल लिया, i भी निकाल लिया। अब इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा? I विल बी कैलकुलेटिंग टाउ। तो टाउ को क्या लिख देंगे बेटा? व्हाट वी विल राइट टाउ? टाउ को क्या लिख देंगे? टाउ को फिर ऐसे लिख सकता हूं ना, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू पी ए वाई बार बाई आई इंटू टी, यही है। देख लो टाउ तो यही था ना मेरा, पी ए वाई बार बाई आई इंटू टी। ए वाई बार की वैल्यू निकाली, डेट इज आर स्क्वायर टी कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा। आर स्क्वायर टी डेट इज पी इंटू आर स्क्वायर टी कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई आई इंटू टी। आई इंटू टी कितना है बेटा बता दो जरा जल्दी से? आर क्यूब इंटू टी इंटू क्या करूंगा? बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इंटू क्या करूंगा? टी। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल कर लो और फाइनल टाउ का एक्सप्रेशन बना लो। देखो टी टी कैंसिल, एक टी रह जाएगा, आर कैंसिल, तो पी बाई आर टी यही आ रहा है। पी बाई आर टी इंटू क्या आ गया? ये पी बाई आर टी इंटू क्या आ गया? चेक कर लो आप जरा जल्दी से। पी बाई आर टी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा अपॉन क्या करूंगा? बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, यही है देखो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टाउ। उठा के इस टाउ को m वाले एक्सप्रेशन में डाल दो। देयरफॉर m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू टाउ आर डी थीटा टी आर का इंटीग्रल है, तो भाई इसी को इसमें डालो। नाउ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसी से फिर e निकलेगा। नाउ मोमेंट m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल टाउ आर डी थीटा दैट इज पी आर टी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा अपॉन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, यही आ रहा है, चेक कर लो। इंटू क्या? ये तो मेरा टाउ आया, टाउ इंटू एवरेज दैट इज आर डी थीटा इंटू टी, और थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? माइनस बीटा से प्लस बीटा, इंटू क्या करूंगा? आर डी थीटा इंटू टी, यही है, चेक कर लो, सही है। चेक कर लेंगे, मैंने इसको जो है इस आर डी थीटा इंटू टी इंटू आर तो मोमेंट आ जाएगा। यही था, देखो वो एक्सप्रेशन चेक कर लो। ये एम के एक्सप्रेशन में डाल दिया, टाउ आर डी थीटा टी इंटू आर, और ये माइनस बीटा से प्लस बीटा तक जाएगा। तो बस लास्ट में मैं इसी को इंटीग्रेट करूंगा और बात खत्म कर दूंगा। सो माइनस बीटा से प्लस बीटा। गॉट माई पॉइंट? इसको थोड़ा है ना सिंप्लीफाई कर लो ताकि ईजी हो जाएगा एक्सप्रेशन। सो एम इक्वल टू क्या आएगा? इंटीग्रल, इसको सब कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो। देखो आर आर को एक कैंसिल कर लो और टी टी कैंसिल कर लेना, तो क्या आ जाएगा? पी इंटू क्या? टी टी तो कैंसिल हो गया, आर एक कैंसिल हो गया, पी आर अपॉन बीटा साइन बीटा कॉस बीटा, यही आ रहा है, देख लो। इंटू क्या करूंगा? कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? साइन थीटा, क्लियर है? साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस बीटा, यही आ रहा है, चेक कर लो, यही आ रहा है, एकदम यही आ रहा है। माइनस बीटा से प्लस बीटा, तो m की वैल्यू क्या आ गई? इसमें सब कुछ फिट कर दोगे तो बेटा आपको m की फाइनल वैल्यू मिल जाती। m की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो बता दो कितनी आ जा रही है। तो m इक्वल टू क्या आ जा रहा है? दिस इंप्लाइज माई m इज इक्वल टू हाउ मच? m की जो वैल्यू आ जा रही है, मोमेंट कितना आ जा रहा है? डेट इज पी आर अपॉन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, क्लियर है? इंटू ये कितना होगा? देखो साइन थीटा में बीटा माइनस बीटा पुट करोगे तो 2 साइन बीटा आ जाएगा, 2 साइन ऑफ बीटा माइनस 2 बीटा कॉस बीटा,
ये मेरा मोमेंट आ गया, दिस इज द मोमेंट दैट यू आर गेटिंग हियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंट दैट यू आर गेटिंग हियर। और E क्या हो जाएगा, नाउ E इज इक्वल टू सिंपली व्हाट, E इज इक्वल टू m बाई P, यही हो है मेरा E इक्वल टू क्या है, सिंपली m बाई P। तो 2 को तो कॉमन ले लेना, तो E आ जाएगा मेरा क्या, m बाई P करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2r अपॉन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस बीटा कॉस बीटा। दिस इज द फाइनल वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। क्लियर, सिंपल था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ माय शियर सेंटर। तो एक बार मैं जल्दी से इसको समराइज कर देता हूं ताकि एकदम सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने शियर सेंटर को एट अ लोकेशन E मान लिया, मोमेंट वाला इक्वेशन लिख के दिखा दिया, E इज इक्वल टू m बाई P। अब मुझे m निकालना है ड्यू टू द शियर स्ट्रेस, सो m ड्यू टू शियर अबाउट सेंटर, वो निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, दैट इज किसी थीटा पर एक स्मॉल एलिमेंट पकड़ा d थीटा, और हम m लिख सकते हैं टाउ r d थीटा t इंटू r, ये स्मॉल मोमेंट इंटीग्रेट कर दिया माइनस से बीटा से प्लस बीटा। टाउ मुझे पता है वी ए वाई बार बाई आई टी होता है, बस इसमें फिट कर दिया। v मेरा p है, p ए वाई बार बाई आई टी, तो a वाई बार निकालना है, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ y डी, इससे मैंने a वाई बार निकाला। फॉर दिस एरिया, फॉर एरिया बियॉन्ड थीटा, उसके लिए मैंने a वाई बार निकाल लिया, गॉट माई पॉइंट। फिर मैंने कंप्लीट एरिया का i भी निकाल लिया, फिर इसको मैंने फिट कर दिया टाउ में, तो मुझे टाउ का इक्वेशन मिल गया। फिर मोमेंट निकाल लिया, टाउ का इक्वेशन मोमेंट वाले इक्वेशन में फिट करके। एक बार m मिल गया आपको, तो फिर उसके हेल्प से आपने जो है E निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू m बाई P, एंड दिस इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ माई शियर सेंटर। हालांकि लोगों को ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगता है, बट इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स। कंसेप्चुअली अगर चीजों को समझा जाए तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शियर सेंटर, गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज आवर ऐप दैट इज इंजीनियर्स गुरु। हमने अपने ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज फ्लोट कर रखे। आप हमारे ऐप को, इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, तो उसको ज्वाइन करिए, कोर्सेज को सब्सक्राइब करिए। इस टाइप के कंसेप्चुअल चीज़ें हम कोर्सेज में बड़े डिटेल में लेते हैं। क्लियर? सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस। होपफुली आपको शियर सेंटर का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।